BLMCE Daily News. Before we go on to talk about cross-cultural representation of childhood, we asked our audience a few questions. First of all, we asked them to describe in one word what pops up in their mind when they hear the word cross-culture. Here's what they had to say. People correctly go on to describe culture as ranging from religion, lifestyle, occupations, regional diversity, faith, beliefs, work, festivals, etc. Cross-culture means when one or more cultures cross boundaries of regions, nations, and merge together. Now, as globalization booms, its effect can be clearly seen on schooling, pedagogy, education, and policy. But the construction of childhood remains culture specific. That is, people belonging to different cultures, regions, occupations have different notions about how to let their children develop. But there is very little published information about culture affecting development of children. Western philosophy also goes on to ignore power relations between genders, ethnic groups, castes, religions, etc. Hence, this leads us to the question, does the widely accepted definition of ideal childhood and schooling includes cross-cultural representation? Let's see what our audience said on Mentimeter. As we said, there is very little published information about cross-cultural development affecting schooling and ideal childhood. Our audience goes on to agree that no, ideal childhood and schooling definitions do not include cross-cultural representations. Based on our collective understanding of the paper by D. Vasanta, we recognize that cultural representations are diverse, and the publications in Western philosophy go on to describe one correctly while go on to ignore the other groups. We recognized how biases related to adult culture, gender, working children, caste, and religion go on to shape multiple childhoods. So here we present to you our panels discussing the biases leading to multiple childhood in the light of these four categories. स्वागत है आप सभी का आज की चर्चा में। आज की चर्चा का हमारा मुद्दा है हमारे कार्यशील बच्चों का बचपन। कहीं उनका बचपन खो तो नहीं रहा। हमारे साथ हमारी एक पैनल टीम है जिनके साथ हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। उस पैनल टीम के मेंबर हैं मिस सरिता, मिस रिया बुट्टन, मिस निकिता, मिस्टर राहुल एंड मिस्टर रणवीर। आप सभी का स्वागत है। आइए चलते हैं एक छोटी सी वीडियो की ओर जिसमें हमने इस रिसर्च के पार्ट को समझा और समझने की कोशिश की। और सरकारी स्कूल भी तो होंगे ना? तो अब मैं बहुत पढ़ी, मुझे अब पढ़ने में जाने में बहुत इतना अभी सोचती। और 5वीं तक तुम बोल रही हो और कह रही हो बहुत पढ़ ली। हाँ, फिर तुम करती क्या हो पूरे दिन ये बताओ? मैं काम करवाती हूँ मम्मी के साथ। मम्मी के साथ जाती हो काम करवाने के लिए? अच्छा, तो पढ़ाई फिर मुझे तो समझ नहीं आया कि तुमने पढ़ाई क्यों छोड़ी, क्योंकि सरकारी स्कूल भी इतने सारे हैं आसपास में। तुम्हें जाना चाहिए था। जाना चाहिए तो सबने बोला, लेकिन मेरा फिर बाद में मन नहीं करा, एक बार छोड़ दिया ना उसके बाद। आइए हम अपने पैनल मेंबर से कुछ डिस्कशन चर्चा शुरू करते हैं। इस चर्चा में हम जानना चाहेंगे कि उनके क्या विचारधाराएं हैं, उनके क्या विचार बिंदु हैं इस पूरी रिसर्च को लेकर, हमारे बच्चों के बचपन को लेकर जो अलग अलग वर्गों से जुड़े हैं। मेरा पहला सवाल मिस सरिता से। सरिता जी, क्या आप बता सकती हैं तकई जी ने किन जनरल पॉइंट्स को, किन मुद्दों को यहाँ पर प्रकाशित करने की, यहाँ पर हाईलाइट करने की कोशिश की है इन इंटरव्यूज में जो अभी हमने वीडियो को दिखाया? Yes, Samiksha. Taike studied about the village of Andhra Pradesh. In his studies, he revealed that the work is done by the children in their villages completely embedded in the life structure of their society. So it is generally the important part of their socialization. Work like caring their siblings, rearing the livestock, fetching water, these work are not the wage-based work. So therefore, Taike gives that the child labor is not a valid concept to characterize these kinds of work. Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद सरिता जी। मेरा अगला प्रश्न रिया बुट्टन जी से है। रिया बुट्टन जी, जो इस स्टडी को, इस रिसर्च को आगे बढ़ाने का काम न्यूमोन्जो ने किया है, क्या आप बता सकती हैं उन्होंने किन पॉइंटर्स पर, किन बातों पर चाइल्डहुड की कंडीशन को दिखाने की कोशिश की है? Yes, Samiksha. So Olga Newenhuis published this report in 1999 titled The Paradox of the Competent Child and the Global Childhood Agenda, wherein she studies the rural children of Kerala and talks about the clash. So she talks about this thing that the children in rural Kerala, they attend their school as well as do their household work, and there is no clash in that. So what we can question is that when these children are taking these two tasks simultaneously,
their studies take a backseat. They are not able to focus on their studies because their main focus is that when they reach back to school, back to their home, they have to continue with their household work. So this is the concern. More, thank you. धन्यवाद रिया जी। मैं जानना चाहूंगी निकिता जी से कि क्या हमें इन रिसर्च को, जैसे अभी रिया जी ने बोला, जैसे अभी सरिता जी ने बोला कि जैसे तकई ने एक रिसर्च की थी कि भाई चाइल्ड जो वर्क कर रहा है वो अनपेड है। न्यूऑन्सो ने स्टडी करी कि भाई केरला के जो बच्चे हैं वो काम भी कर रहे हैं, स्कूलिंग भी कर रहे हैं, बट दोनों को कॉप अप करने के चक्कर में वो अपना बचपन खोते जा रहे हैं। तो मैं निकिता से जानना चाहूंगी कि क्या इन रिसर्च को और आगे बढ़ाने की जरूरत है, या जो हमने चाइल्डहुड की असम्पशंस अभी तक बनाई हैं वो सही हैं? हाँ, मेरे अकॉर्डिंग क्या है कि साइकोलॉजिस्ट जो है, साइकोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग चाइल्डहुड सबसे इंटरेस्टिंग फेज होता है एक बच्चे के लिए, एक चाइल्ड के लिए, जिसमें वो बहुत सारी न्यू एक्सपीरियंस लेता है, एजुकेशन लेता है, अपने पेरेंट्स से लव एंड अफेक्शन लेता है। बट हम बहुत सारे लाइव एग्जांपल्स ऐसे देखेंगे, दिल्ली में भी बहुत सारे लाइव एग्जांपल्स हैं। जैसे एक लोकेशन है जहाँ पे मैं लास्ट टाइम गई थी, रमेश पार्क, जहाँ पे बहुत सारे स्लम बच्चे रहते हैं जिनके पेरेंट्स बहुत ही पुअर हैं। उन परिषद से गर्ल्स को ऐसा शो किया जाता है कि वो एक हाउस होल्ड मतलब वर्किंग की तरह है, मतलब घर पे बच्चों का ध्यान, अपने भाई बहनों का ध्यान रखेगी, मम्मी की हेल्प करेगी और घर के सारे काम करेगी। वहीं बॉयज को इस तरह शो किया गया है हमारी सोसाइटी में कि वो पेरेंट्स के बाहर जाकर हेल्प करेंगे और अपने पापा की हेल्प खेतों में जाके करेंगे या लेबर्स वर्क करेंगे, जिनसे उनकी थोड़ी अर्निंग हो सके और इससे वो अपने लाइफ को थोड़ा अच्छा बेटर बना सके। बट इसके साथ ही जब छोटे बच्चे हैं उनमें एजुकेशन का उतना उन्हें प्रमोट नहीं किया गया उनके पेरेंट्स के अकॉर्डिंग, और वो इस तरफ ज्यादा ध्यान ही नहीं दे पाते क्योंकि वो अर्निंग्स पे ज्यादा ध्यान देते हैं कि किस तरह वो पैसे थोड़े कलेक्ट कर सके और अपनी जो सिचुएशन है उससे बेटर कर सके। तो इसमें हमें बहुत सारी रिसर्च की जरूरत है कि जो बच्चे, जिसकी वजह से क्या होता है वर्किंग चिल्ड्रन की वजह से कि बच्चे स्कूल नहीं जा पाते, जिनकी वजह से उनका फ्यूचर उनपे मतलब बिल्कुल बेकार हो चुका होता है, उनका फ्यूचर, उनकी कोई ड्रीम्स नहीं रह जाती जिसकी, और वो अपने पेरेंट्स के ही हाउस होल्ड वर्क्स में मतलब सिमट के रह जाते हैं। तो हमें इसे और अच्छी तरीके से देखने की जरूरत है कि वो एजुकेशन के साथ साथ अपने पेरेंट्स की भी हेल्प कर सके। अगर वो पेरेंट्स की हेल्प नहीं करेंगे तो उनके पेरेंट्स बाहर जाकर अर्निंग भी नहीं कर पाएंगे, जिनसे भी उनकी कंडीशन बहुत बुरी हो सकती है। तो जो बच्चे हैं उनके लिए अच्छा है कि वो एजुकेशन को भी बैलेंस रखें और अपनी मम्मी पापा की हेल्प भी कर सकें। थैंक यू। धन्यवाद निकिता जी। तो मैं निकिता के विचारों से इस पॉइंट पर आई हूँ कि कहीं ना कहीं जो बच्चे हैं हम उनको उनके वर्किंग से कंसिडर कर रहे हैं, यानी उनकी जो सोसाइटी है, उनके जो फैमिली सोशल नॉर्म्स हैं, वो उनको बचपन से ये सिखाते आ रहे हैं कि वर्किंग करनी है, बिकॉज हमें लिवलीहुड कमाना है, हम बैकवर्ड हैं और हमें एजुकेशन का कोई यूज नहीं है। मैं इन सब कंक्लूजन के बाद जानना चाहूंगी राहुल जी के क्या विचारधारा है, उनके मन में क्या क्वेश्चंस राइज हुए इन सब रिसर्चेस को देख करके, और सीआरसी की रिपोर्ट क्या कहती है। जैसा कि इसमें तकी ने ये कहा है कि जो बच्चे घर पर काम करते हैं और अनपेड फॉर्म में, उनको उसमें चाइल्ड लेबर में भी काउंट नहीं होता, और उसके बाद जो रूरल एरियाज में एजुकेशन प्रोवाइड होती है उसका उनका डेली लाइफ में कोई यूज नहीं है रूरल एरियाज में, क्योंकि उनको काम वही करना होता है, एग्रीकल्चर वगैरह या जो भी डोमेस्टिक वर्क वगैरह होते हैं। तो इसलिए यहाँ पे इसको उनको ये क्वेश्चन रेज होता है, सीआरसी ये क्वेश्चन जनरेट करती है कि हम काम क्यों ना करें, क्योंकि उनको काम एक्चुअल में काम उनको वही काम करना होता है जो रूरल एरिया से बिलोंग करता है। इसलिए उनको एजुकेशन को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं और अपना सिर्फ वही काम करते हैं जो उनका लिवलीहुड से डेली लाइफ से रिलेटेड काम होता है, जैसे एग्रीकल्चर है और बाकी काम है। ओके, धन्यवाद राहुल जी। मेरा अगला सवाल मिस्टर रणवीर जी से है। रणवीर सर, आप बता सकते हैं कि इन सब परिस्थितियों के बाद, इन सब रिसर्चेस के बाद जो क्वेश्चंस राइज हो रहे हैं, जो कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट हो रहे हैं, जो कॉन्ट्राडिक्ट उनके रिसर्च को लेकर के हो रहे हैं, क्या उनका क्या कंक्लूजन और क्या सॉल्यूशन हम रख सकते हैं कुछ आपके पॉइंट ऑफ व्यू में एज अ क्रॉस कल्चर चाइल्डहुड? थैंक यू समीक्षा जी। जैसा कि हम सभी जानते हैं एजुकेशन का महत्व, एजुकेशन सभी समस्याओं का एक हल है, एक सॉल्यूशन है। और जैसा कि जो बच्चे चाइल्ड वर्किंग बच्चे हैं, कहीं ना कहीं उनके पेरेंट्स जो हैं वो एजुकेटेड नहीं हैं। तो हाँ, पेरेंट्स को एजुकेट करना बहुत जरूरी है ताकि वो अपने बच्चों को भी इसके महत्व के बारे में समझा सकें। बच्चों को समझाना चाहिए कि घर के कार्य महत्व है, पर इससे भी ज्यादा महत्व है एजुकेशन। एजुकेशन का महत्व हमारी जिंदगी में क्या है, यदि उनके पेरेंट्स को हम ये समझाएं तो वो पेरेंट्स अपने बच्चों को समझा सकते हैं। इस पर हमारी गवर्नमेंट भी बहुत ज्यादा फोकस करती है। हमारी गवर्नमेंट इन बच्चों का भविष्य उज्जवल हो, इसीलिए हमारे जो गवर्नमेंट है वो नई नई समय समय पर स्कीम निकालती है। जैसे आप जानते हैं कि मिड डे मील स्कीम है, लाइवली योजना है, फाइनेंशियल एड्स भी निकालती है ताकि बच्चे इसका लाभ उठा सकें। पर हम कहीं ना कहीं अर्बन एरियाज में इसको इम्प्लीमेंट तो कर पा रहे हैं, इसके रूरल एरिया से इसको ज्यादा इफेक्ट नहीं हो रहा है।
इसके पीछे रीजन ये है कि रूरल एरियाज में हम सभी जानते हैं, पर रूरल एरियाज में बहुत कम अवेयरनेस है लोगों के अंदर। तो हम अगर उनको समझा सकें, उनको इसके महत्व के बारे में बता सकें, तो वो इसका एडवांटेज ले सकें, और वो जो गांव के बच्चे हैं, जो गरीब के बच्चे हैं, जो पढ़ने नहीं जा सकते हैं, उसका इसके थ्रू इसके लाभ जान सकें और उनका भी भविष्य अच्छा हो सके एक आम बच्चों की तरह। धन्यवाद जी। तो रणवीर जी, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि हमारी कुछ स्कूल पॉलिसीज में, एजुकेशन पॉलिसीज में खाली ये सुविधाएं देने की बजाय मिडिल मील वगैरह, क्या हमें उसके स्ट्रक्चर में चेंज नहीं लाना चाहिए कि हमें उन्हें, जैसे आपने कहा कि गवर्नमेंट पॉलिसीज लाई जाती हैं, बिल्कुल लाई जाती हैं, आपकी बात मैं बिल्कुल मानने के लिए तैयार हूँ कि अर्बन प्लेसेस में लगाई जाती हैं और रूरल प्लेसेस में ये प्रॉपर ढंग से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाती। मैं ये जानना चाहती हूँ कि एजुकेशन पॉलिसीज में कन्वर्जन और चेंजेस लाने की जरूरत नहीं है कि उन बच्चों को ऐसी स्किल्स दी जाएं जिससे वो अर्निंग क्रिएट कर सके और वो एजुकेशन की तरफ डाइवर्ट हो, क्योंकि वो क्यों नहीं जा पाते। मेरी समझ, जैसे आप सभी ने अपनी विचारधारा रखी है, मेरी समझ ये कहती है कि वो ये चाहते हैं कि हम वर्क क्यों ना करें। जरूरी है वर्क करना, हमारी लिवलीहुड को, ये हमारा डेली लाइफ को स्पेंड करने का तरीका है। अगर हम काम नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या, हम जिएंगे कैसे, हम किताबें पढ़ने से क्या होगा। तो हमें, आपको नहीं लगता कि हमारी एजुकेशन पॉलिसीज में ऐसी एजुकेशन दी जानी चाहिए जिससे उनको स्किल्स सीखने को मिले? बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। जैसा कि हमारी नई एजुकेशन पॉलिसी आई है 2020, जो एजुकेशन नई पॉलिसी आई है, उस पर हमारा सबसे ज्यादा फोकस है वोकेशनल एजुकेशन के ऊपर, ताकि बच्चे जो हैं क्रिएटिव वर्क कर सकें। किसी भी कार्य को, हर कोई डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन सकता हमारी सोसाइटी के अंदर, बट जो भी कार्य वो कर सके वो सोशल तरीके से, इफेक्टिव तरीके से कर सकें। ठीक है, अगर वो कार्य, अगर वो खेती करता है तो वो उसका टेक्नोलॉजी का, वो इतना जानकार हो, इतना नॉलेज है उसके पास कि वो टेक्नोलॉजी का उपयोग करे, ताकि उसी चीज को वो इफेक्टिव तरीके से काम कर सकें। कोई भी कार्य है जिसको वो एजुकेशन के थ्रू उसको इम्प्लीमेंट करके वो उसको आगे अच्छा कर सके, इसलिए हमारी जो एजुकेशन की जरूरत थी, और 2020 जो एजुकेशन पॉलिसी है जल्दी इम्प्लीमेंट होगी, ताकि जो रूरल, जो ग्रामीण के बच्चे हैं उनको भी इसका लाभ हो सके और ये भी हमारे देश की सेवा में कार्य कर सकें। धन्यवाद। मुझे पूरी आशा है कि आपकी नई पॉलिसी जल्दी ही इम्प्लीमेंट हो पाए हमारे बच्चों के साथ, और हमारे हर क्रॉस कल्चर स्थिति और बैकवर्ड बच्चों के साथ भी उनकी परिस्थितियों को सामान्य रूप से लाने के लिए उसको लाया जा सके। धन्यवाद। आज का चर्चा संपर्क यही समाप्त होता है। Thank you, Samiksha. Thank you. Thank you, everyone. Thank you to all. नमस्कार, मैं प्राची स्नातक प्रशिक्षण विभाग के सभी साथियों का अभिनंदन करती हूँ। हमारा देश पहले की अपेक्षा आज आर्थिक, वैज्ञानिक और शिक्षा के क्षेत्र में काफी तरक्की कर रहा है, लेकिन तरक्की के इस दौर में देश सामाजिक तौर पर 3 भाग में बंट गया है। पहला वर्ग जो टॉप लेवल पर है, अर्थात समृद्ध वर्ग, इनके यहाँ लड़के लड़कियों में ज्यादा भेद देखने को नहीं मिलता, इसी कारण आधुनिक दौर में यह काफी सफल भी हो रहे हैं। दूसरी तरफ मध्यम वर्ग जो मॉडर्निटी के साथ साथ अपनी परंपराओं को भी बरकरार रखने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर हम देखा गया है कि किशोरावस्था अर्थात टीनेज आते आते लड़के और लड़कियों में भेदभाव शुरू हो जाता है। जहाँ लड़कियों को घर के कामकाज सीखने के साथ साथ पढ़ाई करनी होती है, वहीं लड़कों पर ऐसी कोई पाबंदी नहीं होती। तीसरे नंबर पर समाज का वो वर्ग है जो आधुनिक दौर से बेखबर अपनी पुरानी परंपराओं को आज तक ढो रहे हैं। उदाहरण के लिए आनंद लक्ष्मी और बजाज द्वारा वाराणसी के मोमिन अंसारी कम्युनिटी के 209 बच्चे पर किए गए रिसर्च के अनुसार केवल 9 वर्ष की उम्र में लड़कियों को बिना पर्दे घर से बाहर जाने की अनुमति नहीं है और केवल 13 से 14 वर्ष में ही उनका विवाह कर दिया जाता है। वहीं इलैया द्वारा लिखित किताब व्हाई आई एम नॉट अ हिंदू में कुरुमा समुदाय के लड़के और लड़कियों द्वारा किए जाने वाले अलग अलग कामों का विवरण मिलता है। आज की हमारी चर्चा का विषय यही है, जेंडर इक्वालिटी। इस पर आप हमारे संवाददाता प्रांशु की ये रिपोर्ट देखिए। Media, specifically toy television commercials, help relay the message to society that there are specific toys for each gender. आज इस बातचीत में हमारे साथ शामिल हैं हमारे साथ 3 खास मेहमान। राखी जो आरएमएस की नेता है, रिया गौतम WBO यानी विमेन डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन में कैंपेन एडवाइजर हैं, और प्रोफेसर ऋचा चंद्रा जिन्होंने जेंडर इक्वालिटी में काफी काम किया है। तो पहला प्रश्न राखी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, क्या केवल समृद्ध वर्ग में लड़के और लड़कियों को समान मान लेने से हम पूर्णतः जेंडर इक्वालिटी हासिल कर सकेंगे? थैंक यू प्राची। समृद्ध वर्ग में लैंगिक समानता होना काफी नहीं है,
अक्सर शोध में देखा गया है कि मध्यम व निम्न वर्ग के लड़के लड़कियों को असमानता का सामना करना पड़ता है, चाहे विद्यालय हो या हमारा समाज। उन्हें हर तरह से समानता के तराजू में तोला जाता है। श्रमिक समाज में ऐसा इसलिए भी नहीं होता क्योंकि इस वर्ग के बच्चों के माता पिता आर्थिक रूप से मजबूत होते हैं और वह शिक्षित भी होते हैं। उनके लिए लड़के लड़कियां समान होते हैं। परंतु हमारे देश में और भी वर्ग ऐसे हैं जहां अधिकतर लोगों में लड़के लड़कियों में भेदभाव किया जाता है। लड़कियों की अपेक्षा लड़कों को ज्यादा महत्व दिया जाता है। लड़कियों को घर के कामों में निपुण बनाया जाता है ताकि वह अगले घर जाके अपनी गृहस्थी संभालें। यहाँ तक कि उन्हें विद्यालय में भी शिक्षा में कमी की जाती है। और ऐसा इसलिए भी होता है क्योंकि उनका मानना है कि लड़कियों को आगे जाके सिर्फ घर में काम ही करना है और घर की देखभाल ही करनी है। तो इसके लिए हमारे पास सोल्यूशन क्या है राखी? मैं आपके सोल्यूशन जानना चाहूंगी। इसके लिए सोल्यूशन यही है कि हमें बच्चे जितना हो सके अपने लड़की हो चाहे लड़का हो सबको शिक्षित करना बहुत जरूरी है। और इसके लिए सबको उनके माता पिता सबको जागरूक होना बहुत जरूरी है। और जितनी भी सरकार की तरफ से पॉलिसीज आती है उन सबका सही रूप से इम्प्लीमेंटेशन होना भी बहुत जरूरी है, तभी इस असमानता को हम कम कर सकते हैं। धन्यवाद राखी। आप कहना चाहती हैं कि शिक्षा ही एकमात्र साधन है, और वैसे भी कहा गया है एजुकेशन इज द रेमेडी फॉर ऑल, एजुकेशन इज द सॉवरेन रेमेडी फॉर ऑल टाइप्स ऑफ इलनेसेस। मैं अगला प्रश्न रिया आपसे करना चाहूंगी। मिडिल क्लास फैमिलीज में लड़कों के कंपेयर में लड़कियों पर अतिरिक्त कार्यभार सौंपा जाता है, जबकि आवश्यकता तो दोनों के लिए बराबर है। इस पर आपकी क्या विचार है? आपने बिल्कुल सही कहा प्राची। जो बर्डन है अनपेड घर के काम का वो अर्ली चाइल्डहुड से शुरू होता है, और जैसे जैसे एज बढ़ती है गर्ल्स की वैसे वैसे और इंटेंसिफाई होते जाता है। गर्ल्स अपनी अपॉर्चुनिटीज जैसे कि टू लर्न, टू ग्रो एंड जस्ट एंजॉय देयर चाइल्डहुड उसको एक्सपीरियंस नहीं कर पाती हैं। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेबर से जेंडर स्टीरियोटाइप्स बिल्ड होते हैं और वुमेन के ऊपर डबल बर्डन आता है। गर्ल्स के काम को इतनी वैल्यू नहीं दी जाती है, घर के काम में ही सारा टाइम निकल जाता है। इससे फिर गर्ल्स को खेलने का दे आरंट एबल टू सोशलाइज विद देयर फ्रेंड्स नॉर आर दे एबल टू स्टडी एंड बी अ चाइल्ड। Steps which need to be taken are quantifying the challenges girls face, gender equality, breaking down barriers, empowering girls with knowledge, skills, resources they need to reach their full potential is not only good for girls but can drive economic growth, promote peace and reduce poverty. धन्यवाद रिया। अगला प्रश्न ऋचा मैं आपसे करना चाहूंगी। जो लोग आज भी अपनी पुरानी परंपराओं को आने वाली पीढ़ी पर झोंकते जा रहे हैं, यह प्रश्न मैं मोमिन अंसारी कम्युनिटी के संदर्भ में आपसे पूछना चाहूंगी, जहां केवल 13-14 वर्ष की उम्र में ही लड़कियों का विवाह कर दिया जाता है। तो उन लोगों को हम मुख्य धारा में कैसे ला सकते हैं, कैसे उन्हें मेन स्ट्रीम सोसाइटी में ला सकते हैं? इस पर जल्दी से आपका जवाब चाहूंगी। थैंक यू प्राची। द सॉल्यूशंस कैन बी, हम नेशनल लॉज को यूनिसेफ फंड के साथ लेके आ सकते हैं, गवर्नमेंट को इंसिस्ट कर सकते हैं ताकि इक्वालिटी अमंग बॉयज एंड गर्ल्स रिड्यूस हो सके, काफी डिमिनिश हो सके। सेकंड पॉइंट ये है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को हम हर जगह एस्टेब्लिश कर सकते हैं, बिल्टअप कर सकते हैं, सो दैट एक्सेसिबिलिटी जो एजुकेशन की है वो हर जगह पहुंच सके, चाहे वो मार्जिनलाइज ग्रुप्स हो या चाहे वो नॉर्मल ग्रुप्स कम्युनिटी हो या नॉर्मल पीपल हो। थर्ड पॉइंट ये है कि वी कैन बिल्ड अप प्रमोशनल मेजर्स या अफर्मेटिव एक्शंस ले सकते हैं इन मार्जिनलाइज ग्रुप्स के लिए या किसी नॉर्मल पीपल के लिए भी, ताकि दोनों लोग कंट्रीब्यूट करे और समझ सके कि मतलब मार्जिनलाइज ग्रुप्स में क्या मतलब प्रॉब्लम्स होती हैं, हाउ दे आर फेसिंग इन देयर रियल लाइफ एंड हाउ गर्ल्स एंड बॉयज आर ट्रीटेड एज यू हैव सेड व्हिच वी सी इन मोनिक कम्युनिटी। अगर मैं सही कंक्लूड कर पा रही हूँ तो आप यही कहना चाह रही हैं कि शिक्षा के द्वारा एक तो, और दूसरा जागरूकता फैलाना, क्योंकि सरकार तो बहुत सारे नियम कानून बना चुकी है, ऑलरेडी बहुत सारी स्कीम्स एग्जिस्ट कर रही है, पर जरूरत है ऐसी कम्युनिटीज के पास उन स्कीम्स को पहुंचाने की जहां पर कहीं ना कहीं सरकार सोशल अवेयरनेस स्कीम्स भी ला सकते हैं, सोशल अवेयरनेस स्कीम्स को भी बिल्डअप कर सकते हैं, प्रमोट कर सकते हैं, अवेयरनेस लाने की जरूरत है। ठीक है, धन्यवाद आप सबका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। धन्यवाद। नमस्कार, शुक्रिया हमारे साथ बने रहने के लिए। मैं हूँ आपकी होस्ट सलोनी। आज के इस कार्यक्रम में हम एक बहुत ही अहम पर बहुत कम चर्चित टॉपिक के बारे में एक वार्तालाप करना चाहेंगे। आज हमारे साथ मौजूद है हमारे 3 बहुत ही जाने माने पैनलिस्ट रिमशा मिराज, निष्ठा बिष्ट और निशा। शुक्रिया हमारे साथ इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए। आज की चर्चा शुरू करने से पहले आइए नजर डालते हैं एक छोटी सी वीडियो। Isn't it a remarkable coincidence? Almost everyone has the same religion as their parents. It always just happens to be the right religion. Religions run in families. If we'd been brought up in ancient Greece, we'd all be worshipping Zeus and Apollo. How does this come about? Well, of course, through childhood indoctrination. One by one, those ancient belief systems have vanished from the face of the earth.
and we seem to get on just fine without them. Zeus with his thunderbolts, Apollo, Wotan, Thor with his hammer, all were once worshipped as gods. People believed in them, prayed to them, sacrificed to them. Children were brought up with them, told of their existence as a matter of undoubted fact. But nowadays, everybody agrees that no matter how sincere those believers undoubtedly were, they were deluded. क्या आप हमें बता सकती हैं इस टॉपिक के बारे में और थोड़ा? जी शुक्रिया सलोनी। मेरे ख्याल में जो धार्मिक संस्थान है यानी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है वो अपनी सहूलियत के हिसाब से धर्म को की व्याख्या कर रहे हैं, मीन्स डिफाइन कर रहे हैं। आज हम लोग नुक्कड़ पर, रेलगाड़ी पर धर्म को लेकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन असल जिंदगी में धर्म को जानने की जहमत कम ही लोग उठाते हैं। धर्म पर विश्वास हमें कॉन्फिडेंस देता है, लेकिन जब यह विश्वास अंधा बन जाता है तब वह शहर तक जला देता है। जाति में भेदभाव कर आज हम इंसानियत को मार रहे हैं। संविधान हमें एक पढ़ाई का फंडामेंटल राइट यानी मौलिक अधिकार देता है। ऐसी कई घटनाएं हुई हैं जहां दलित मिड डे मील वर्कर के कारण स्वर्ण जाति के बच्चों द्वारा मिड डे मील खाना बंद कर दिया गया है। क्षेत्र में स्कूलों में जातिगत पर आधार पर मिड डे मील के अनुसूचित जाति के बच्चों को अलग अलग पंक्तियों में बिठाकर उन्हें खाना दिया जाता था। जब पढ़ाई कर रहे हैं तभी भी ये रेखाएं खींचती गई थी। ऐसी घटनाएं बच्चों में जात पात की भावना को समाप्त करने की बजाय बढ़ावा दे रही हैं। शिक्षा के मंदिर में ऐसी घटनाएं सभ्य समाज के लिए घातक ही नहीं बल्कि दुर्भाग्यपूर्ण और शर्मनाक है। शुक्रिया रिमशा जी। अब हम निशा जी से राय लेना चाहेंगे और उनसे जानना चाहेंगे कि क्या कास्टिज्म की प्रॉब्लम का एजुकेशन से रिलेटेड कोई सॉल्यूशन है? बिल्कुल सही कहा आपने रिमशा जी। कास्टिज्म बहुत बड़ा बैरियर है स्पेशली इंडियन सोसाइटी में, एंड अगर एजुकेशन की बात करें तो ये और भी बढ़ जाती है। सिंस गेनिंग इट्स इंडिपेंडेंस द इंडियन गवर्नमेंट हैज कंटिन्यूड टू मेक प्रोग्रेस ऑन इंप्रूविंग द क्वालिटी लाइफ फॉर इंडियंस lowest caste. There are many solutions, but few of them are: first, we can provide value-based education to children from childhood, can solve the problem of casteism to some extent. Second, provision of cultural and economic equality among different sections of society reduces chances of jealousy and competition in education. Third point, textbooks are often the only basis for a curriculum in a subject. Because school is not able to purchase its own textbooks, then knowledge resources will be limited. New textbooks provide little incentive for Dalit children to attend classes as they don't alleviate any of the barriers currently blocking them from SS education. Fourth point, many preventable diseases, including hookworm, roundworm, millions of children worldwide every year, preventing them from attending any sort of schools or doing any physical labor. In this sense, Pre-Drug Association with this program not only provide incentive for children to come to school and learn. Fifth point, food incentives and school uniform, which are often so expensive as to prevent young girls and boys from attending school, is also a big barrier. Thank you, Saloni ji. आपने मेरे से solutions लिए. थैंक यू निशा जी। हम उम्मीद करेंगे कि एजुकेशन सिस्टम आपके सॉल्यूशंस को सुने और थोड़ा इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें। अब हम निशा जी से पूछना चाहेंगे कि क्या वो इस विषय के बारे में कुछ और सॉल्यूशंस बता सकती हैं? जी बिल्कुल सलोनी जी, मेरे अकॉर्डिंग बहुत सारी सोशल एजेंसीज हैं जैसे कि फैमिली, स्कूल्स, मास मीडिया, जो कि जिनको थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेनी चाहिए ताकि वो कुछ बच्चों को बता सकें, एक प्रॉपर बोर्ड बना सके चिल्ड्रंस में ताकि वो निग्लेक्ट करें ये सब कास्ट सिस्टम, फीलिंग्स ऑफ कास्ट सिस्टम। सेकेंड चीज मेरे अकॉर्डिंग एक लिटरेसी प्रोग्राम बनना चाहिए रूरल एरियाज में ताकि वो ये कास्ट फीलिंग्स रिमूव करे, ताकि कास्टिज्म रूरल एरिया से हट जाए, क्योंकि सबसे ज्यादा ये रूरल एरियाज में ही होता है इतना। And these feelings of casteism can be minimized by provision of social education amongst rural population. तीसरी चीज कि by encouraging more intercaste marriages, the feeling of arising out casteism can be removed, can be minimized or removed as a marriage between the two caste systems, so that the two castes come more close to each other. That's all. Thank you निष्ठा जी। Thank you हमारे esteemed panelists। अब समय के चलते हमें इस कार्यक्रम को यहीं रद्द करना पड़ेगा, पर कृपया इस चैनल के साथ बने रहें, आगे ऐसे और भी कार्यक्रम आ रहे हैं। Good afternoon, everyone. I, Priya Devatia, welcome you all in today's discussion. Our today's topic is adulthood and media shaping childhood.
Firstly, let us have a look at the short video. I asked children to reflect on their daily lives. The 57 children were situated in 2 school classes, one from each of 2 schools. Major observations. Children regard parents as having ultimate responsibilities, mothers for childcare and father for resourcing the family. Children accept low status and regard themselves as subordinate to adults, one of whose responsibilities is to teach them moral standards. Children also emphasize the importance of friendships with other children. Children also emphasize the importance of friendships with other children. Children think they have participation rights, but find that these are not always respected. Parents only sometimes, and school staff hardly. For today's discussion, we have 3 panel members, and these are Rimsha Miraj, Saloni Mittal, and Samiksha Jain. Now, I would like to ask a question from Rimsha Miraj. And my question is, what are the general points that emerge from children's accounts? Rimsha. थैंक यू सो मच प्रिया. एक्चुअली जो वर्ल्ड है उसने डिवाइड कर रखा है 2 पर्टिकुलर ग्रुप्स में, दैट इज एडल्ट और चाइल्ड, नॉन एडल्ट, जिसे हम चिल्ड्रन बोलते हैं. अब जो चिल्ड्रन है वो जनरली एडल्ट्स के साथ एग्री हो जाते हैं हर एक चीज में, चाहे वो करना चाहते हैं चाहे वो नहीं करना चाहते. हमने आज तक कभी भी अपने एल्डर्स को नो कहना नहीं सीखा है. हम चाहे वो प्रेशर में आके हाँ कहें या उनकी इज्जत रखने के लिए हाँ कहें, लेकिन हम उनकी बातें मानते हैं. थर्ड चीज ये होती है कि जो एडल्ट हैं वो बच्चों को समझते हैं कि वो उनके पास इतनी स्ट्रॉन्ग एबिलिटी नहीं है थिंक करने की, या वो इनकम्प्लीट है एज अ पर्सन, और वो अज्यूम करते हैं कि जो एडल्ट का एजेंडा है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंस्टेड ऑफ चिल्ड्रन के लिए. तो चिल्ड्रन की कुछ भी थिंकिंग के लिए वो चिल्ड्रन को गाइड करते हैं, लीड करते हैं, ताकि वो एक हैप्पी प्लेस में, सक्सेसफुल प्लेस में चले जाए. वो जो एस्पिरेशन अपनी लाइफ में अचीव नहीं करता है वो एक्सपेक्ट करते हैं कि चिल्ड्रन उस चीज को फुलफिल करें. थैंक यू. Thank you, Rimsha. My second question is from Saloni Mittal, and the question is, what are the possible barriers in rethinking childhood? Saloni. तो प्रिया जी, अभी का जो हमारा कॉन्सेप्ट है चाइल्डहुड का, वो मोस्टली वेस्टर्न फिलॉसफर्स का है. इवन जो यूएन कन्वेंशन के अंदर जो राइट्स ऑफ द चाइल्ड है, उसमें भी जो भी हमने कॉन्सेप्ट्स दे रखे हैं वो सारे के सारे वेस्टर्न कॉन्सेप्ट्स हैं. तो जब हम लोग रीथिंकिंग की बात करते हैं तो सबसे बड़ा बैरियर तो यही है कि हमें पहले वेस्टर्न साइकोलॉजी से दूर हटके सोचना पड़ेगा कि चाइल्डहुड कॉन्सेप्ट को हम लोग कैसे रीथिंक कर सकते हैं. थर्ड बैरियर ये है कि जो हम लोग चाइल्डहुड का जो कॉन्सेप्ट है उसके अंदर जो चिल्ड्रन है हम उन्हें बहुत ऐसी चीजों से रिलेट करते हैं जैसे कि अनस्टेबल, इनकम्पिटेंट, इमोशनल, बल्कि हम लोग एडल्ट्स को रिलेट करते हैं ऐसी चीजों से जैसे स्टेबल, इमोशनली स्टेबल और कम्पिटेंट. तो ये भी एक बैरियर बन जाता है हमारे लिए चाइल्डहुड को रीथिंक करने में. थैंक यू. Thank you, Saloni. And last but not the least, my third question goes to Samiksha Jain. And my question is, what can be the possible solutions? Samiksha. Thank you. Thanks a lot, Priya, for giving me that opportunity. In my opinion, हमें सोशियोलॉजी ऑफ चाइल्डहुड बढ़ाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. स्पेशली उस पार्ट में उनके अटेंशन को लाने की ज़रूरत है जिस फीचर को हम चाइल्डहुड के मोस्टली नेग्लेक्ट कर देते हैं. लाइक प्लेइंग, लाइक उनका मोटर स्किल्स को लेकर वर्किंग, लाइक उनकी मेंटल और कॉग्निटिव, लाइक उनकी हैप्पीनेस. तो हमें उनको एक सोशल ऑर्डर का बेटर अकाउंट प्रोवाइड करने के लिए, बेटर सिचुएशंस प्रोवाइड करने के लिए उनको सोशल ऑर्डर वर्क्स में इन्वॉल्व करना जरूरी है. बट इसको यूज करने के लिए, इस नॉलेज को यूज कब किया जा सकता है? जब हम उनकी हर रॉन्ग चीज को राइट करने की कोशिश में उनके ओपिनियंस का भी यूज करें. सेकेंड थिंग, जो प्रॉपर स्टडी सोशल ऑर्डर की, उसमें हमें और क्या चीजें इंक्लूड करनी चाहिए? हमें सोशल कंडीशंस को भी इंक्लूड करना चाहिए. चाइल्ड का जो आसपास की सोसाइटी में अवेलेबल है उसके हर फैक्टर को, हर सिचुएशंस को हमें कंसीडर करने की बहुत ज्यादा जरूरत है अगर हम सोशल ऑर्डर को देखते हैं चाइल्डहुड की सिचुएशन को फ्रेम करने के लिए. जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वहाँ पर चिल्ड्रंस का, उनको भी कंसीडर करना बहुत ज्यादा जरूरी है. सोशियोलॉजिकल प्रोजेक्ट्स पर जब हम वर्क करते हैं, शुरुआत में उसके जो टास्क हैं उनको एग्जिट चिल्ड्रन फॉर्म में एक्सट्रैक्ट करने की जरूरत है. उनके फैमिली के स्टेज से, उनके बिल्कुल बेसिक जो उनकी इनिशियल स्टेज है उनकी सोसाइटी की, वहां से उन चीजों को एज अ सोशल ग्रुप में हमें कंसीडर करना चाहिए कि वो क्या क्या फेस कर रहे हैं. उसके हिसाब से हमें उनकी चाइल्डहुड फ्रेमिंग करनी चाहिए. थैंक यू. थैंक यू समीक्षा. थैंक यू. Thank you, panel members, for enlightening us today. Thank you, Abdullah. So, to conclude for the day, you can see some examples on the screen that led us to realize that children across cultures, especially the non-dominant ones, struggle to fit in the idea of ideal childhood and schooling.
The modern education system, textbooks, global social policies, development theories, and schooling norms consider children and childhood only through a lens that projects a narrow image of culture and national goals. It goes on to ignore the cross-cultural representation. Thus, as present students, upcoming educators, and policymakers, we need to work on pedagogies, resource materials, and classroom dynamics that consider cross-cultural representation of children and their childhood. Thank you.